Okay. So last lecture में हमने concept of equilibrium discuss किया था and problem based on that. ठीक है. आज कंटिन्यू करेंगे आगे न्यूटन्स लॉ. Okay. What is Newton's first law? Newton's first law. Every object continues to remain at rest or in the state of uniform motion unless an external unbalanced force acts on it. Correct. So Newton's first law simply says that if there is a body that will remain, if it is at rest, it will remain at rest, right? And if the body is moving with constant velocity, so it will keep on moving with constant velocity unless you apply unbalanced, mark me word, unbalanced external force. Okay? So a body at rest will remain at rest and a body in uniform motion will remain in uniform motion unless unbalanced, mark me what, unless unbalanced external force is applied. Got the point? So if there is a body, if it is at rest, the body will try to remain at rest. And if the body is moving with constant uniform motion का मतलब क्या है? Body is moving with constant velocity, right? So if there is a body, if it is at rest, it will remain at rest. And if the body is moving with constant velocity, it will remain with constant velocity unless we apply unbalanced external. Is it clear? यही था ना न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ? Yes, sir. Okay. Now, what is Newton's second law? What is Newton's second law? Force is rate of change of linear momentum. Okay. Which force? Is it internal force or external force? External force. Newton's law. Newton's second law. Second law. What does it say? That F external force which we apply is nothing but that is equal to rate of change of linear momentum. आपने जो external force लगाया है, that external force will be equal to what? Rate of change of linear momentum. And also that applied external torque is the rate of change of angular momentum. Correct. So if it is torque, it will be angular momentum. If it is force, it will be linear momentum. So Newton's second law says that F external which we apply is nothing but that is equal to rate of change of linear momentum. By the way, what is linear momentum? Product of mass and velocity. Product of mass and velocity. So let's say if there is an object here and this object is having mass of m kg and this object is going in this direction, let's say with v meter per second. So what will be the linear momentum for this object? Is it mass into velocity? Yes. Okay, the unit will be mass का unit हो गया kg and the velocity is meter per second. So the unit will be kg meter per second. And also angular momentum L is equal to I omega. Yeah, that is when we apply torque, Siddhant, not with the force. So if I say torque external, then we can say linear rate of change of linear momentum. But if I am saying force, it will be rate of change of linear momentum. Okay, so if it is torque here, that will be rate of change of angular momentum. And if it is force here,
This will be rate of change of linear momentum. You tell me, this linear momentum, is it a scalar quantity ki vector quantity? Vector. It's a vector quantity. Now, what is the direction of linear momentum? Same as that of direction of velocity. Correct. So whatever the direction of velocity is, that will be the direction of linear momentum. So directions क्या होगा इसका? Direction same as the direction of velocity. So whatever is the direction for velocity, that will be the direction for linear momentum. I hope you know this much concept. कितना पता होगा हमें linear momentum के बारे में? So यहाँ पे जो आपने force लगाया is d mass into velocity by dt. Instead of p momentum, linear momentum, I have written mass into velocity, which is the formula for linear momentum. क्या आ जाएगा? F is equal to m को बाहर निकालो, velocity को differentiate करो, plus velocity को बाहर निकालो, mass को differentiate. Yes or no? U into v rule ऐसे ही करते हैं ना, u को बाहर निकाला, v को differentiate किया, plus v को बाहर निकाला, u को differentiate किया. So I have taken out mass and differentiated velocity, plus I have taken out velocity and I have differentiated mass. Yes or no? And torque Yes. is equal to I into d omega by dt plus omega into di by dt. Yes, for angular that. Now, if this is the case, let's say if my mass is constant, so मुझे यहाँ से क्या मिला? We get force as, हमें जो यहाँ से force मिला है, m into dv by dt plus v into dm by dt. Let's say if my mass is constant, so अगर मैं mass को constant लेता हूँ, तो rate of change of mass क्या हो जाएगा? 0. 0. Which means कि dm by dt will be equal to what? 0. If I have taken mass to be constant, तो dm by dt में कोई change नहीं होगा, right? So if it is no change here, so what will be the formula for force? M into dv by dt plus v into dm by dt. Now this term dm by dt will be tending to what? 0. So क्या बच गया formula for force? Mass into dv by dt. Now what is this dv by dt? Acceleration. Acceleration, right? So what is the final formula for force? F is equal to mass into acceleration. Which force is this? Internal or external? External. External. तभी system का linear momentum change करेगा. And for external torque, it is I alpha. I alpha, very good. So F is equal to mass into acceleration. Remember this. This formula for force can be only applied if my mass is constant. Right? Am I clear with this? I hope you're getting the point. कि mass constant है तभी आपने dm by dt को 0 रखा है और ये जो आपको formula मिला है F is equal to m into a. So this formula can be only applied if my mass is constant. अगर mass variable है तभी हम ये formula use नहीं कर पाएंगे. Okay. Now इसी केस में आप देखो, if velocity is constant, but mass changing, क्या लगाइएगा फॉर्मूला? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास चेंज होगा ना, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? क्या था हमें? v into, so we had from here F is equal to m into dv by dt plus v into dm by. Am I clear? So अभी देखो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब dv by dt वाला टर्म क्या हो जाएगा? Will that be equal to 0 if my velocity is constant? Yes. Yes. Okay. So F कितना हो जाएगा सिंपली फॉर्मूला में? v into dm by.
So this is the formula that is applied when my velocity is constant but mass change. So in that case, we'll be using this formula. और F is equal to ma आप तब यूज करोगे जब आपका मास कांस्टेंट हो. Otherwise, this is the actual formula for force from Newton's law. Am I clear? Yes. Okay, good. तो बेसिक से हमने नॉर्मल लेक्चर में भी डिस्कस किया था इसको. अच्छा, पार्टिकल जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में मूव होता है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव होता है? Particle moves in which direction? Does it move in the direction of force or it moves in the direction of velocity? पार्टिकल है, मान लो आपका ऐसा सरफेस है और इसके ऊपर भी है वो पार्टिकल हियर, इसके ऊपर आपने एक पार्टिकल प्लेस कर दिया. तो माय क्वेश्चन इज कि ये जो पार्टिकल है इस पे मान लीजिए वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर लग रहा है. सो पार्टिकल ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाएगा कि फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा? किस डायरेक्शन में जाएगा पार्टिकल? force, यस, इन फोर्स. वेलोसिटी, वेरी गुड. पार्टिकल moves in direction of velocity. Particle moves in direction of velocity. In direction of velocity. ध्यान रखिए ये बात को, सिंपल सा पॉइंट है, काइनेमेटिक्स में भी बताया था. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा पार्टिकल उधर ही जाएगा. सो फिलहाल मेरा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, सो पार्टिकल इधर जाएगा. वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में होता तो पार्टिकल इधर जाता. सिंपल. सो पार्टिकल ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अगर मेरा फोर्स वेलोसिटी के फेवर में है तो वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज की डिक्रीज? increase, Increase. If force in favor of velocity, then velocity will increase. अच्छा, अगर फोर्स वेलोसिटी के फेवर में नहीं है, उसके अगेंस्ट है, तो क्या वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? Decrease. Decrease. डिक्रीज. If force is against velocity, then velocity will decrease. Am I clear properly? So ध्यान रखना ये बात, पार्टिकल ऑल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में जाएगा. Am I clear? Yes, sir. Okay. What is Newton's third law? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? Every action force has equal but opposite reaction. हाँ. So for every action there is equal but opposite reaction. सिंपल सी बात. न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? For every action there is equal but opposite reaction. Newton's third law. For every action there is equal but opposite reaction. Am I clear? Yes, sir. Okay. सिंपल सा फंडा है, ये आपको पता ही होगा पहले से. So न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है for every action there is equal but opposite reaction. So let's start working on this. We have a block here. ठीक है, इसका मास आपने दे दिया है, let's say mass is of 2 kg. We are applying a force here 20 Newton at an angle of 37 degree.
आपसे पूछा गया फाइंड नॉर्मल रिएक्शन exerted by ground, find normal reaction and acceleration of block. चलो करिए, सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन कैसे करेंगे? ये 20 न्यूटन था, दिस एंगल वाज 37, सो व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट? 20 cos of 37। 20 cos इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? गुड भूमिका एंड सर्विस। इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 20 sin 37. 20 of sin 37। और क्या लगेगा ऊपर की तरफ? फोर्स। विल देयर बी Normal नॉर्मल? range. नॉर्मल। और नीचे क्या लगेगा इधर? mg. mg। करेक्ट, गुड मैन। सो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम चेक करें, इफ आई गो इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो क्या ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में मूव हो रहा है कि रुका हुआ है? रुका है। रुका हुआ। सो कैन वी से दैट नॉर्मल रिएक्शन प्लस 20 ऑफ sin 37 degree, will that be equal to mg? Normal plus 20 sin 37 is acting in the upward direction and mg is acting in the downward direction. So normal plus 20 into sin 37 कितना हो जाएगा? 3/5 is equal to what? 24. So क्या रिलेशन आएगा? नॉर्मल प्लस ऑफ 12 is equal to 20, implies कि नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? 8 न्यूटन। ओके, एक्सीलरेशन जो होगा इस ब्लॉक में, वो फोर्स के कौन से कंपोनेंट की वजह से होगा? 20 sin 37 की वजह से एक्सेलरेशन होगा या 20 cos 37 की वजह से होगा? Cos 37. F net is what I'm having 20 of cos 37. Now this is equal to mass into acceleration, 20 into what? 4/5. So mass दिया है 2 into acceleration is equal to 16, which will give us 8. Price acceleration will be equal to what? 8 meter per second. Correct. Is it clear, everyone? Is it clear? In doubt in this? No, sir. Sure. It's an easy problem. See, just stay there. Let's move forward. Here we have one block. Along with this, हमने एक और ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है. Let's say this is a block of mass 3 kg, 2 kg, and from here we are applying a force. कितना फोर्स लगा रहे हैं हम? Let's say we are applying a force of 15 Newton. आपसे पूछ रहा है find normal reaction between two blocks. Reaction between two blocks. So इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्योंकि इधर भी कांटेक्ट है ना, तो ऑब्वियसली इधर भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. सो दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ए और बी के बीच में, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड.
हाँ आ गया, एक्सीलेंट। क्या करेंगे पहले हम लोग, लेट्स मेक दिस एज अ सिस्टम। इस पूरे को आप सिस्टम बना दो। So, इस पूरे सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? इफ आई मेक दिस ए एंड बी कंबाइंड सिस्टम, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है इस केस में? एक्सटर्नली या बाहर से कितना? 50 न्यूटन। इफ आई एम मेकिंग दिस एज अ सिस्टम, क्योंकि ये और बी, अगर आप इधर से धक्का मारोगे तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों साथ में जाएगा। सो आई कैन मेक दिस अ सिस्टम, राइट। सो अगर आप इस सिस्टम बना दो ए और बी को, तो इस पे आपने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया है? 50 न्यूटन। नाउ दिस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 50। बोलो पूरे सिस्टम का मास कितना है? व्हाट इज द मास ऑफ कंप्लीट? 5 5. 5 kg. 5 into acceleration will be equal to 50. Then implies acceleration कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या ये कंबाइंड ब्लॉक जो होगा दोनों ए और बी साथ में, क्या वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा? राइट। नाउ व्हाट यू डूइंग इज कि ये जो ब्लॉक ए है या बी है, व्हाटएवर, सो मैं बी लेता हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बने। देखो जैसे ही आगे जाएगा, सो ए विल अप्लाई अ नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी। क्या ये ए जो ब्लॉक है वो बी पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा? कि जैसे इधर ये मूव करेगा, तो ए ने बी को धक्का मारा, तो क्या ए बी पे नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? Yes. ओके। नाउ व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग हियर? नीचे क्या लगेगा फोर्स? mg. mg. mg। और ऊपर क्या लगेगा फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन। Normal. दिस विल बी सेपरेट एन डैश पकड़ लो या n1। मुझे इससे तो कोई लेना देना है नहीं, बिकॉज इट विल बैलेंस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी पे क्या लग रहा है नेट फोर्स? What is the net force in horizontal direction on block B? Is it only 15. n? Horizontal B पे बेटा, A पे नहीं। B पे क्या लगा? कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो क्या ये फोर्स B के कॉन्टैक्ट में है क्या? Yes. नहीं नहीं, आई एम सेइंग दिस फोर्स, इज इट इन No, कॉन्टैक्ट? no. नो, ये फोर्स A के कॉन्टैक्ट में, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर B। B के लिए हमें 50 न्यूटन लेने की जरूरत नहीं है। B के कॉन्टैक्ट में कौन सा फोर्स लग रहा है? ओनली द नॉर्मल रिएक्शन, Normal. which is applied by block A. So m into A is equal to what? Normal reaction. B का मास ऑलरेडी वी नो इज 20, एक्सेलरेशन वी हैड 10, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? सो नॉर्मल सिंपली 20। यू कैन प्लॉट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए आल्सो, और वो भी करके आप सॉल्व कर सकते। नो प्रॉब्लम। एम आई क्लियर? Yes. है ना? जैसे मैंने Yes. बी, ध्यान रखना एक बात, ये जो ब्लॉक बी है वो किसकी वजह से मूव कर रहा है? क्या ब्लॉक बी 50 न्यूटन की वजह से मूव कर रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय ए की वजह से मूव कर रहा है? ब्लॉक बी, Normal reaction applied by. यस वेरी गुड, इट्स अ कांटेक्ट फोर्स, और ऑब्वियसली ये फोर्स इसके कांटेक्ट में नहीं है। तो ये जो ब्लॉक ए है वो तो 50 न्यूटन की वजह से मूव कर रहा है, लेकिन ब्लॉक बी इज मूविंग विथ बिकॉज ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज अप्लाइड बाय ब्लॉक ए, नॉट बिकॉज ऑफ दिस 50 न्यूटन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? समझ में आया सबको पॉइंट? ये Yes. गुड। लेट्स से गुड, ये ऐसा दो ब्लॉक्स है और इसको आपने थ्रेड से कनेक्ट कर दिया। इट इज कनेक्टेड विद अ थ्रेड। वी आर अप्लाइंग फोर्स हियर, लेट्स से 25 न्यूटन। ब्लॉक का मास दिया है 2 kg, 3 kg। सो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन इन थ्रेड। करेक्ट।
सर्विस चलो कैसे करेंगे? लेट मी मेक ए और बी को एक कंबाइंड सिस्टम पकड़ लेता हूँ। ए और बी को इंक्लूड करके मैंने एक सिस्टम बना दिया। So I have taken A and B as a complete system. Good, Ameya. So A और B को मैंने सिस्टम बना दिया। गुड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं A और B को एक सिस्टम बना दूं, तो A और B की कंबाइंड सिस्टम पे व्हाट इज द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग? नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? 25. 25. As we know that net force is equal to mass into acceleration is equal to 25. Now what will be mass in this case? 3 kg plus 2 kg. What is that? 5 into acceleration is equal to 25. 5 हो जाएगा, which means acceleration कितना हो गया बेटा? Is it 5 meter per second square? So ये combined system आगे जाएगा with an acceleration of 5 meter per second square. हाँ या ना? Yes. Okay. Now block B पे अगर हम concentrate करें, so what is the force acting on block B? क्या 25 न्यूटन एक्ट हो रहा है कि ब्लॉक बी पे सिर्फ टेंशन लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? Tension. ऑन ब्लॉक बी। सो ब्लॉक बी पे अगर आप देखोगे, so what will be net force? Only equal to tension. This implies mass into acceleration is equal to tension. टेंशन कितना आ जाएगा? इसका मास 3 kg और एक्सेलरेशन 5 दिया है। 15. Am I clear? Good, everyone. Am I clear? समझ गया पॉइंट सबको? Yes. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी कंस्ट्रेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपको नॉर्मल बातें कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स लगा के, नॉर्मल एक्सेलरेशन लगा के आगे डिस्कस करें। कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे तो उसमें पुली वाले कॉन्सेप्ट्स करेंगे। सो वी हैव अ ब्लॉक हियर, एक और ब्लॉक ऐसे है, दिस वी हैव कनेक्टेड विद अ थ्रेड, और इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं 120 न्यूटन का। दिस ब्लॉक इज हैविंग मास ऑफ 4 kg, मास ऑफ 2। इसी को वर्टिकल प्लेन ऊपर लेके जा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन इन थ्रेड। नहीं, गलत हो गया सर्विस। You have done the same mistake. थोड़ा सा आपको सोचना था इसके ऊपर। मुझे बताओ इस, हाँ एक्सीलेंट भूमिका, अमेन एक्सीलेंट। इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा इन वर्टिकल डायरेक्शन? व्हाट विल बी द नेट फोर्स? 120 minus mg. हाँ, ये पूरा कंबाइंड सिस्टम पकड़ लो, यहाँ पे भी mg लगेगा, 4 into 10 40 न्यूटन, और प्लस ये ब्लॉक का भी नीचे लगेगा mg,
अगेन कितना हो जाएगा 2 into 10 which is equal to what 20 Newton. So what will be the net force on this block? Okay. प्रतीक्षा is wrong है बेटा calculations. क्या होगा net force इस block पे? Is it 120 minus of 60 plus 60? Sorry, 40 plus 20. कि ये जो 40 न्यूटन है वो भी नीचे लग रहा है, 20 न्यूटन भी नीचे लग रहा है. सो नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन कितना हो जाएगा? इज इट 120 minus 40 minus 20? So F net is equal to mass into acceleration. 120 minus of 60. What is the mass of this system? 6 kg. 6 kg. So 6 into acceleration is equal to what? 60. 10. Implies acceleration कितना हो जाएगा? Simply equal to what? 10 meter per second square. Now we can go with a free body diagram of any block A and B. आप सबने इसको इग्नोर कर दिया, राइट? कुछ लोगों ने इग्नोर कर दिया. Someone has done, भूमिका has done it right. So 40 न्यूटन और 20 न्यूटन नीचे लग रहा है और 120 न्यूटन ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा? 120 minus 40 minus 20 which is 60 न्यूटन. And the mass of this combined system is 6 kg. So 6 into acceleration is equal to 60. So acceleration will be equal to what? 10 meter per second square. Now अगर आपको टेंशन पूछ रहा है, so for that free body diagram of block B, इसका free body diagram बना. क्या लग रहा है ब्लॉक बी पे ऊपर? ब्लॉक बी पे ऊपर क्या लग रहा है? इज इट टेंशन व्हिच इज एक्टिंग हियर? हाँ, क्या लग रहा है? mg. और ये पूरा सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है विथ व्हाट एक्सेलरेशन? टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास वी हैड इज 2 meter per 2 kg. So what is the net force on block B? T minus M. minus 20. On block B. So net force अगर आप block B पे लिखोगे, so can we say that net force on block B is nothing but that is equal to T minus of 20? क्योंकि block B पे ऊपर T लग रहा है और नीचे mg लग रहा है, so block B पे net force कितना होगा? Which is T minus of mg. Now this is equal to mass into acceleration. T minus of mg, which is what? 20. Is it clear? So 2 into 10. So that implies कि टेंशन कितना हो जाएगा from here? That equal to 40. Am I clear? Yes. Good. कोई डाउट इसमें किसी को? No. सबको क्लियर है ना बेटा? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. sir. Yes. चलिए. गुड. अभी भी मैंने कंस्टेंट नहीं कुछ भी लिया, सिंपल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं बेस्ड ऑन न्यूटन्स सेकंड एंड फर्स्ट लॉ. मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, सो आई हैव अ बकेट हियर, और इस बकेट में बकेट है, और इस बकेट में मैंने क्या किया है? क्या है? poured some water on this bucket. So we have a bucket here. और इस बकेट में हमने क्या किया है? थोड़ा पानी को पोर किया है, लिक्विड पोर किया, एक्चुअली ऐसे लिक्विड पोर किया है. इसका डेंसिटी है रो kg पर मीटर, ठीक है, रो kg पर मीटर. और यहाँ से एक होल है, तो obvious सी बात है इसमें से पानी बाहर निकलेगा, वाटर विल कम आउट और आके इधर फॉल हो जाएगा. अगर मैंने यहाँ पे होल पंक्चर किया, सो वाटर विल कम आउट एंड विल फॉल ऑन द ग्राउंड, राइट? मान लो कि ये जो पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है, दिस इज कमिंग आउट विद अ वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकेंड. आप मुझे सोच के बताइए, अगर ये पानी v मीटर पर सेकेंड से बाहर निकल रहा है, तो क्या ये जो वाटर है वो इसके ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स लगाएगा क्या पीछे के डायरेक्शन में? अगर पानी बाहर निकल गया तो क्या बकेट पे एक फोर्स लगेगा पीछे के डायरेक्शन में?
Yes, sir. है ना, झटका होता है ना, पानी जैसे बाहर निकलेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फोर्स experienced by bucket when water is coming out. With V मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये जो होल है छोटा सा, इसका एरिया दिया है A मीटर स्क्वायर। ये क्या है? सिंपली एरिया ऑफ होल। आपको एज्यूम करके चलना है कि वेलोसिटी फिलहाल मेरा कांस्टेंट है, बाद में वो चेंज होगा ऑब्वियसली। कैसे अप्रोच करें इसको? हाउ टू अप्रोच दिस? मुझे एक बात बताइए, जब ये पानी इसमें से बाहर आ रहा है तो क्या मास चेंज हो रहा है क्या सिस्टम का? Yes. Okay. So क्वेश्चन में क्या है? मास इज चेंजिंग as water is coming out of the bucket. So अगर मास चेंज हो रहा है, so what is the formula for density force? V dm by dt. V dm by dt, V into dm by dt. Okay, so let's say कि इतना डिस्टेंस मेरा x हो गया, x पकड़ लेता हूँ। ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा टोटल अगर मैंने x पकड़ लिया? So what will be the volume for this? Is it equal to area into x? मुझे एक बात पता है, डेंसिटी क्या होता है बेटा? Mass upon volume. Mass upon volume. Okay. So density rho is equal to mass by volume. So mass कितना हो जाएगा? Density into volume. So what will be the density here? Sorry, volume कितना होगा यहाँ पे? Is it area into x? ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ विच इज x। तो यही वॉल्यूम हो जाएगा ना जो फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में। सो कैन वी से कि द वॉल्यूम हियर इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय x। सिलेंडर का अगर आप वॉल्यूम निकालते हो तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, सो दैट विल गिव यू द वॉल्यूम। सेम वे में अगर मैं एरिया में लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मुझे वॉल्यूम मिलेगा? Yes. ओके, नाउ दिस इज माय मास, सो यहाँ प्लेस कर दीजिए फोर्स के रिजल्ट में। एफ आई वाज हैविंग v into dm by dt। एफ कितना हो जाएगा? v dm की जगह पे क्या प्लेस करोगे? रो ए एक्स ओवर डी टी। सो रो ए को बाहर निकालें, एफ इज इक्वल टू वी रो इंटू ए, बाहर निकाला डी एक्स बाई डी टी। ये डी एक्स बाई डी टी वाला टर्म क्या देगा? व्हाट विल दिस? वेलोसिटी, Velocity. है ना। सो ये वेलोसिटी दे दिया। सो फोर्स कितना लगेगा? वी रो ए इंटू वी। सो फाइनली फोर्स कितना लगेगा? रो ए इंटू वी। should be is one of the important formula. This force experienced by bucket when liquid is coming out. जब लिक्विड बाहर आ रहा है, so this is the force which is experienced by bucket, which is rho a v square. Am I clear? Yes, sir. Okay, it's a good concept. So rho a v square is the force which is being experienced by the bucket when the water is coming out with a velocity of v meter per second. Any doubt बेटा सब किसी को? No, sir. चलो,
हेडिंग दे दीजिए, कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, कंस्ट्रेंट मोशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, so we'll talk about string constraint. It is one of the important concept, अक्सर क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर। सबसे पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में बात करेंगे। लेट्स से कि मेरे पास एक ऐसा थ्रेड है और इसके इधर एक ब्लॉक कनेक्ट किया है एंड हियर वी हैव अनदर ब्लॉक। ऐसे मेरे पास दो ब्लॉक, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। नाउ मान लो कि ब्लॉक ए इधर की तरफ मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, आप ब्लॉक ए को मूव करा रहे हो 20 मीटर पर सेकेंड से। सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी? अगर मैं ए वाले ब्लॉक को खींच रहा हूँ 20 मीटर पर सेकेंड से, तो बी वाले ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। कैन यू टेल मी व्हाई इट इज सेम? बी वाले ब्लॉक का वेलोसिटी सेम क्यों होगा? मुझे एक बात बताओ, अगर एक ही थ्रेड से कनेक्टेड है। ऐसा समझते हैं, अगर ब्लॉक ए 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो क्या यहाँ वाला जो थ्रेड का पॉइंट है, क्या ये भी 20 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा? Yes. राइट। इसके जो बाजू वाला ये जो पॉइंट है, क्या ये भी 20 मीटर पर सेकंड से तर जाएगा? Yes. क्या इसके बाजू वाला पॉइंट भी 20 मीटर पर? ऑल द पॉइंट्स विल मूव विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। यस, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर Massless thread. मासलेस थ्रेड है नंबर वन, एंड नंबर टू कि अगर, और इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है ऑफ कोर्स, अगर ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का अगर वेलोसिटी अलग अलग हो गया, तो क्या दोनों पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा और थ्रेड वहां से टूट जाएगा? Yes. यस, Yes. Yes. So if this point and this point has different velocities, so there will be relative motion between these two points. ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन थ्रेड वहां से टूट जाएगा, राइट। लेकिन क्या थ्रेड टूट रहा है? No. राइट। नो, इंप्लाइज कि थ्रेड के जितने भी पॉइंट्स होंगे, ईच पॉइंट विल बी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। सो अगर ये वाला पॉइंट भी 20 मीटर पर सेकंड से गया, तो क्या ये वाला जो पॉइंट है विच इज इन कॉन्टैक्ट विद बी, क्या ये भी 20 मीटर पर सेकंड से जाएगा? Yes. राइट। सो अगर ये भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इंप्लाइज कि क्या ये वाला ब्लॉक भी 20 मीटर पर सेकंड से जाएगा? यस सर, सिंपल। सो पहला जो कॉन्सेप्ट था वो यही है, स्ट्रिंग कांस्टेंट, व्हिच इंप्लाइज कि थ्रेड के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, उन सभी पॉइंट्स का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी अगर अलग हो जाए, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिलेटिव मोशन थ्रेड विल ब्रेक फ्रॉम देयर। Am I clear? Simple से फंडा। All points on thread should have same velocity or acceleration, because if they have different velocity or acceleration, there will be relative motion between two points, and hence thread will break. Got it? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes. ओके, कोई डाउट इसमें? सो जो ये आपका ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी होगा और ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी होगा, लेट्स से ये पॉइंट मेरा 1 है और ये पॉइंट मेरा 2 है, सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट
फंडा समझ में आया सबको प्रॉपरली? Yes. Yes, sir. इतना ही कॉन्सेप्ट है, जो सिंपल सा स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट का इतना ही कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर स्ट्रिंग के जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी पॉइंट्स का स्पीड सेम होना चाहिए, सभी पॉइंट्स का एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए, बिकॉज अगर इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो गया तो थ्रेड के दो पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा एंड द थ्रेड विल ब्रेक। हम जो यहाँ थ्रेड ले रहे हैं वो कैसा थ्रेड है? Massless. मासलेस एंड Inextensible. इनएक्सटेंसिबल, मतलब थ्रेड को हम एक्सटेंड खींच नहीं सकते, इसके लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते। So right now we are having massless thread and inextensible thread. तो I cannot extend it. इसका हम चेंज नहीं कर सकते लेंथ को। Is it clear बेटा? समझ गया पॉइंट सबको? Yes. चलो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करते हैं। कॉन्सेप्ट इतना ही है, since thread is inextensible therefore all points on the thread should have same velocity, क्योंकि अगर या एक्सेलरेशन, और क्योंकि अगर दो पॉइंट्स के बीच का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर डिफरेंट हो गया तो दो पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा एंड दैट थ्रेड विल ब्रेक डाउन। ठीक है, I'll make a question. जैसे कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसको मैंने पुली से कनेक्ट कर दिया। देयर इज अनदर ब्लॉक हियर सच दैट ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है लेट्स से वो 37 डिग्री। फेमस क्वेश्चन है, ब्लॉक किधर जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। सो फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। ये आपका ब्लॉक ए हो गया, दिस इज माय ब्लॉक बी हियर। ठीक है, ये ब्लॉक बी है और ये वाला ब्लॉक ए है। आपसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, सॉरी ब्लॉक बी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। कैसे करेंगे इसको? आप खुद सोच के देखो, अगर ये वाला ब्लॉक 20 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो क्या इस थ्रेड पे जो ये वाला पॉइंट होगा क्या ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा? इधर Yes. क्या ये वाला पॉइंट भी 10 मीटर पर सेकंड से इधर जाएगा? क्या ये वाला जो Yes. पॉइंट है ये भी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा? ऐसे ये वाला पॉइंट भी 10 मीटर पर सेकंड से उधर जाएगा? यस और नो? क्या ये जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है ये भी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा? Yes, sir. कांटेक्ट वाला पॉइंट भी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। नाउ अब जब इसको आप इधर खींचोगे तो क्या बी इस डायरेक्शन में जाएगा? मुझे यही पता करना है कि जब आप इधर खींचोगे इसको तो बी विल मूव इन दिस डायरेक्शन विद वी मीटर पर सेकंड, राइट? अब देखो ये जो वी वेलोसिटी आपका आया, इसका ये कंपोनेंट जो थ्रेड के लॉन्ग है क्या वो 10 के बराबर होना चाहिए? क्योंकि अगर v का कंपोनेंट 10 के बराबर नहीं होगा तो ये वाला पॉइंट, थ्रेड के ये वाला पॉइंट और ब्लॉक के पॉइंट के बीच में जहाँ पे वो कांटेक्ट में था रिलेटिव मोशन आ जाएगा और क्या ये थ्रेड यहाँ से टूट जाएगा? राइट? रिपीट। हाँ, सी ये वाले पॉइंट को थोड़ा जूम करके एनालाइज करो, थोड़ा बड़ा करके एनालाइज करते हैं। सो थ्रेड मेरा यहाँ से कनेक्टेड था, क्या थ्रेड का ये जो पॉइंट है इज इट गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड ब्लॉक वाज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद v मीटर पर सेकेंड, राइट? अब ये जो वेलोसिटी है ब्लॉक का इस वाले पॉइंट पे, इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होना चाहिए थ्रेड के लॉन्ग, क्या वो कंपोनेंट का भी मैग्नीट्यूड 10 के बराबर होना चाहिए? यस। क्योंकि अगर ये वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द थ्रेड
अगर 10 के बराबर नहीं हुआ तो क्या थ्रेड के इस पॉइंट के बीच में और ब्लॉक के इस वाले पॉइंट के बीच में विल देयर बी रिलेटिव मोशन, एंड बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन क्या ये थ्रेड यहाँ से टूट जाएगा? गेटिंग द पॉइंट? बिकॉज थ्रेड का ये जो पॉइंट है ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ब्लॉक इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद v मीटर पर सेकंड। तो ये जो वेलोसिटी आपको v मिला, इसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग द थ्रेड, सो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द थ्रेड शुड दैट बी इक्वल टू 10, क्योंकि अगर ये कंपोनेंट 10 के बराबर नहीं होगा तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में देयर विल बी रिलेटिव मोशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट थ्रेड विल ब्रेक। यस और नो? Yes, sir. Okay. So आपको क्या करना पड़ेगा, that component of velocity along thread should be same. So what we can say, concepts देखो वही concept है, सिर्फ application change करेगा। Component of velocity of B along the thread should be equal to चलो इधर V है, ये एंगल 37 है, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा? व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट? V cos 37 ना, और इधर का कंपोनेंट हो जाएगा V sin 37। V को रिजॉल्व कर दिए, ये एंगल मैंने ऑलरेडी आपको 37 डिग्री दिया था, सो V का कंपोनेंट इधर की तरफ क्या हो गया? V cos 37, राइट? सो कैन वी कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट V of cos 37 degree should that be equal to 10? Yes. Right? So what is cos 37? 4 by 5 is equal to 10. 4 by 5. So V कितना हो जाएगा? 25 by 2, 12.5. Is it clear? Yes, sir. Yes. Good. So simple concept, वही फंडा है। हाँ सर्विस, एनी डाउट बेटा? तो कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व किए हैं वो बता। क्या क्या? रिपीट अगेन। कंपोनेंट थोड़े कंपोनेंट कैसे तोड़ा? देख, इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मेरा v था, दिस एंगल आई हैव ऑलरेडी गिवन यू 37, तो v का कंपोनेंट इधर की तरफ क्या हो जाएगा? v cos 37, अदर v sin 37। ये जो कंपोनेंट हो गया थ्रेड के अलोंग v cos 37, दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? 10। वही बैलेंस किया है। इज इट क्लियर? यस चल नेक्स्ट प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट कितना छोटा सा था कि थ्रेड के हर पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, बिकॉज अगर हो गया तो थ्रेड टूट जाएगा। ओनली दैट कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग एवरीवेयर। Sir, can you show the previous slide? Yeah. Done, sir. चल I'll make a question. लेट्स से ऐसे हमने अरेंजमेंट किया है, और यहाँ पे मान लीजिए एक ब्लॉक है, एंगल्स इजी लेता हूँ। लेट्स से ये एंगल मेरा 37 डिग्री और ये एंगल मेरा 53 डिग्री है। ब्लॉक ए, ठीक है। नाउ ये जो ब्लॉक ए है वो इधर जा रहा है 5 मीटर पर। सो ब्लॉक ए को अगर आप इधर खींचोगे तो बी भी इधर शिफ्ट होगा। सो ब्लॉक ए इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी।
ध्यान रखना कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग द थ्रेड शुड बी सेम. कॉन्सेप्ट इतना ही है. ओके, करें इसको सॉल्व हम लोग. देखिए, सो ऑब्वियसली अगर आप इसको इधर खींचोगे तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा. लेट्स से v मीटर पर सेकेंड. ये एंगल 53 डिग्री है. सो व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट? v cos 53. सेम वे में अगर मैं इसका कंपोनेंट तोड़ू अलोंग द थ्रेड, सो इफ दिस एंगल इज 37 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? अगर ये एंगल मेरा 37 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? विल इट बी आल्सो इक्वल टू 37 डिग्री? Yes, sir. इफ इट इज 37, दिस विल बी 37. सो इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 5 cos 37, एंड व्हाट विल बी द कंपोनेंट हियर? 5 ऑफ sin 37 डिग्री. मैंने क्या बोला आपको? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग थ्रेड शुड बी सेम. सो ये जो कंपोनेंट होगा 5 cos 37, विल दैट बी इक्वल टू v cos 53? Right? Or can you repeat? But what I have said is कि component of velocities along thread should be same, right? So velocity का component thread के along same होना चाहिए. ये 5 मीटर पर सेकेंड इधर है. If this is 37, so this will be also 37. तो 5 का component thread के along कितना होगा? Will it be equal to 5 cos 37? Right? So ये मेरा component हो गया along the thread, which is 5 cos 37. Here it is v, angle is 53. तो v का component thread के along कितना हो जाएगा? v cos 53. So can I say that v cos of 53 is equal to 5 of cos 37, right? ये क्या है? What is this? Component of velocity along thread. So दोनों velocities का component, इस वाले velocity का भी component और इस वाले velocity का component thread के along जो होगा उसको हमें equate करना पड़ेगा. समझा बेटा अभी आपको पॉइंट ये? cos 53 Yes. 3, हाँ ये हो जाएगा 4/5. 5 से ये वाला 5 एलिमिनेट हो जाएगा. इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, सिंपल सा फंडा है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है. दैट्स इट. इतना ही करना था कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा थ्रेड के लॉन्ग वो सेम होगा. इसका भी कंपोनेंट तोड़ दिया, इसका भी कंपोनेंट तोड़ दिया, दे विल बी सेम. बस एम आई क्लियर? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है जो अभी लूंगा. सबको समझा ना कॉन्सेप्ट से? Yes, sir. वेरी गुड. मान लो ये रॉड है, ये रॉड है, इसके दोनों एंड्स को ऐसे अटैच किया है. गुड, करते ऐसे अटैच किया है. हियर देयर इज अ रिंग. ऐसे एक रिंग का छल्ला लगा है, ऐसे रिंग है.
और इसको यहाँ पे एक पुली कनेक्ट कर दिया है और इसके साथ मैंने क्या किया, एक ब्लॉक ऐसे कनेक्ट कर दिया है. लेट्स से वी हैव अ ब्लॉक हियर. एंगल इजी लेता हूँ, ये एंगल मान लीजिए 37 डिग्री है. सो एंगल हियर इज 37 डिग्री. चलो अभी क्या करें, मान लीजिए ये जो ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, अगर ये ब्लॉक नीचे आएगा तो रिंग किधर स्लिप करेगा, आगे जाएगा क्या रिंग? Yes, sir. Yes. Find velocity of ring. Find speed of ring at this instant. कैसे डील करेंगे? मुझे एक बात बताओ, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा तो क्या ये भी 10 से नीचे आएगा, ये भी 10 से इधर जाएगा, ये भी 10 से इधर जाएगा, और क्या रिंग इधर सरकेगा? Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्या था कि कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी along thread should be same. यही था ना कॉन्सेप्ट कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग थ्रेड शुड बी व्हाट, सेम. सो अभी ये 10 मीटर पर सेकंड था, ये v इधर है, मुझे बताओ v का कंपोनेंट अलोंग द थ्रेड कितना हो जाएगा? इज इट v ऑफ cos 37, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, v ऑफ sin 37. सो इसके अलोंग इधर अगर आपका वेलोसिटी v हो गया तो इस v का कंपोनेंट अलोंग द थ्रेड कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू v cos 37. सो कैन वी से that v of cos 37 is equal to 10 component along the thread. Am I clear? इतना ही याद रखो बेटा कि जो भी velocities का component होगा thread के along, so the component of velocity along thread should be same. So v cos 37 is equal to 10. v cos 37 कितना हो गया, 4 by 5 is equal to 10. This is 2 5. So velocity कितना हो जाएगा, 25 by 2 12.5 12.5 meter per second. Am I clear? Am I clear? जमा सभी को पॉइंट ये? Yes, sir. सिर्फ वही करा रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग कंस्टेंट. स्ट्रिंग कंस्टेंट क्या कहता है कि भाई स्ट्रिंग के दो पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, अगर दो पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया तो स्ट्रिंग विल ब्रेक डाउन. उसी का कॉन्सेप्ट ये यूज किया. तो इसमें सिंपल सा फंडा क्या है कि जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा थ्रेड के लॉन्ग, सो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग थ्रेड विल रिमेन सेम. इसका ये वेलोसिटी का कंपोनेंट थ्रेड के लॉन्ग निकाला v cos 37, और ये ऑलरेडी 10 थ्रेड के लॉन्ग ही था, तो बराबर कर दिया दोनों. यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग
कि ये भी वेलोसिटी था ऐसा, इसका भी कंपोनेंट तोड़ो थ्रेड के लॉन्ग, ये इधर जाएगा तो इसका भी कंपोनेंट तोड़ो थ्रेड के लॉन्ग, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा थ्रेड के लॉन्ग दे विल बी सेम, इक्वेट कर दिए। Am I clear properly? गुड। Yes. थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। लेट्स से एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं मूविंग पुली के ऊपर। स्ट्रिंग कांस्टेंट ही लगा रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है कि दो पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। ठीक, मान लो ऐसे दो ब्लॉक हमने कनेक्ट किया है, सो वी हैव टू ब्लॉक्स हियर, एक ब्लॉक इधर हो गया, दूसरा ब्लॉक इधर हो गया। सो अभी ये क्या हो रहा है कि ये पुली ऊपर जा रहा है, मान लो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इन अपवर्ड डायरेक्शन bp मीटर पर सेकेंड, पुली भी चल रहा है, ये 1 है और ये 2 है। मान लीजिए ये भी ऊपर जा रहा है v1 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी ऊपर जा रहा है v2 मीटर पर सेकेंड से, मान लेते हैं। लेट्स से कि ये लेंथ आपका x1 हो गया, ये लेंथ आपका x2 हो गया, और थ्रेड के जो ऊपर का लेंथ है विच इज ऑन पुली, लेट्स से उसको c डिनोट कर देता हूँ। तो c क्या है? लेंथ ऑफ थ्रेड ऑन पुली, लेंथ ऑफ थ्रेड ऑन पुली। व्हाट इज x1? x1 क्या है? x1 क्या है? बोलो फटाफट, x1 क्या है? Length of thread along first block. नहीं, can I say x1 is the length of thread, length of thread वन, ब्लॉक 1 और पुली के बीच का जो थ्रेड है उसका लेंथ है या नहीं? Yes. So what is this? Length of thread between block 1 and pulley। x2 क्या है? What is x2? Length of thread Length. between block and pulley. हाँ, length of thread between block 2 and pulley। So x2 is nothing but that is the length of thread between block 2 and pulley, and x1 is nothing but the length of thread between block 1 and pulley। So what will be the total length of thread? Can we say x1 plus x2 plus c is equal to L? अभी ये L क्या है? Total. Length of thread, है ना? So this is my x1 plus c plus x2 is equal to what? Total length of thread. Can we write this? Can we write this? Yes. Okay, अब क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दो, थोड़ा सा सोचेंगे बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने क्या करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है। सो इफ आई डिफरेंशिएट दिस, व्हाट आई विल बी हैविंग dx1 by dt plus dx2 by dt plus dc by dt is equal to dl by dt। मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। सो कैन वी से dx1 by dt plus dx2 by dt plus dc by dt is equal to dl by dt। Yes. Now what is this dx1 by dt क्या है? अगर आप Velocity. वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ 1 है कि वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू पुली है? With respect to pulley. यस, One with respect. हाँ, बिकॉज ये जो डिस्टेंस हमने x1 मेजर किया था वो 1 का डिस्टेंस मेजर किया था विथ रिस्पेक्ट टू पुली, राइट? सो ये जो डिफरेंशिएट करोगे dx1 by dt विल आई गेट वेलोसिटी ऑफ 1 कि मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू पुली, With दोनों respect to pulley. करेक्ट। सो इज इट वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू पुली? कैन आई राइट दिस एज वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली? आई होप आपको समझ रहा है ये कॉन्सेप्ट। dx1
डिस्टेंस को अगर आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे डिस्प्लेसमेंट को, तो वेलोसिटी मिलेगा आपको। ये जो x1 डिस्टेंस मैंने मेजर किया है वो किसके रिस्पेक्ट में किया है? सो इट इज द डिस्टेंस ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू पुली। तो अगर आप dx1/dt कर दोगे तो क्या मुझे सिर्फ वेलोसिटी ऑफ वन मिलेगा कि वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू पुली मिलेगा? With respect to pulley. Velocity of one with respect to pulley. वेरी गुड। अच्छा, dx2/dt क्या है? Velocity of block 2 with Velocity. respect to pulley. 2 with respect to pulley, which is velocity of 2 minus velocity of pulley. So अगर मैं यहाँ प्लेस कर दूँ, so what I'm having velocity of 1 with respect to pulley plus velocity of 2 with respect to pulley, और ये जो लेंथ ऑफ थ्रेड है ऑन द पुली, क्या ये कांस्टेंट है? तो फिक्स रहेगा ना, उतना ही लेंथ थ्रेड का पुली के ऊपर रहेगा। तो dc/dt क्या हो जाएगा? 0। और टोटल लेंथ ऑफ द थ्रेड इज ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इनएक्सटेंसिबल थ्रेड, तो क्या dl/dt भी 0 हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड भी तो कांस्टेंट ही है ना। क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज जिस थ्रेड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो थ्रेड मेरा इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है। इनएक्सटेंसिबल है इसका मतलब वी कैन नॉट चेंज द लेंथ ऑफ दैट थ्रेड। सो कैन वी से कि dl/dt भी 0 हो गया और dc/dt भी 0 हो गया? Yes. Okay, so what I'm having from here, velocity of 1 with respect to pulley plus velocity of 2 with respect to pulley is equal to what? 0. So velocity of 1 minus velocity of pulley plus velocity of 2 minus velocity of pulley is equal to 0. So twice of velocity of pulley is equal to v1 plus of v2. That implies velocity of pulley कितना हो जाएगा? v1 plus of v2 by 2. ध्यान रखना, डायरेक्शन के साथ लिखना है हमें। So velocity of pulley will be velocity of 1 plus velocity of 2 by 2. Am I clear? Yes, sir. गुड कॉन्सेप्ट, वही लगा रहा हूँ, थ्रेड का स्ट्रिंग कांस्टेंट। अभी फिलहाल हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद मैं आपको एक और बताऊंगा अप्रोच विच इज कॉल्ड पॉइंट मेथड। फिर मैं आपको एक टेंशन मेथड बताऊंगा। सो विल हैव 3 डिफरेंट मेथड्स फॉर द सॉल्विंग। जो लेकिन पहला हम लोग काम करेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। इज इट क्लियर प्रॉपर्ली बेटा? Yes, sir. ओके, नाउ सी कैन वी से दैट कि मुझे क्या मिला? वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 बाय 2। सो अगर हम इस साइड मल्टीप्लाई कर दे, सो ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2। फिर से आप एक काम करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलेगा? 2 कांस्टेंट है, velocity of 1 with respect to time plus velocity of 2 with respect to time. So what I'll be having from here? क्या velocity को अगर आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलता है बेटा? Do we get acceleration? Yes, sir. Yes. So twice into acceleration of pulley is acceleration of 1 plus acceleration of 2. So acceleration of pulley कितना हो जाएगा? Acceleration of 1 plus acceleration of 2 by 2. So this is one concept. Am I clear? Yes. इतना ही फंडा था। डन? प्रॉब्लम देखिए का था।
So let's say कि मेरे पास एक pulley है, and along with this we have two blocks which we have connected like this. So here we have a block 1, this side we have another block which is block B. Yeah, two curve. So block A and block B. Right. Now this pulley is going upward with a velocity of, let's say, 4 meter per second, and this is going upward with a velocity of 6 meter per second. आपसे पूछा गया find velocity of block A. Find velocity of block A. Two meter per second. Okay. Super. Kiora and Karthik, both of you. क्या करेंगे इसमें? वही फंडा लगाना पड़ेगा फिर से. Current धारा. Velocity of pulley is equal to what? Velocity of 1 plus velocity of 2 by 2. The same thing we'll be using. Good. Punch. So velocity of pulley क्या दिया है? 4 meter per second. ऊपर की तरफ ही है तो प्लस ही लेना पड़ेगा. So I have taken upward direction as plus, तो downward क्या हो जाएगा? माइनस. दोनों ही प्लस में है. तो velocity of 1 ये कैलकुलेट करना है. So will be 8 is equal to velocity 6. So velocity कितना हो जाएगा? 2 meter per second. Which means कि block 1 will be, A will be also going upward with what velocity? 2 meter per second. 2 meter per second. Is it clear now? Yes, sir. Yes. Okay. Sure. So here we have connected the pulley, and along with this, so we have a block 1 and 2. करिए. थर्टीन 7. Okay. क्या करेंगे? Velocity of pulley is equal to velocity of 1 plus velocity of 2 by 2. Pulley ऊपर जा रहा है, so I am taking the upward direction as plus. Good. आदित्य. So velocity of pulley ऊपर जा रहा है, so 5. Velocity of 1 मुझे पता नहीं. 2 का velocity क्या हो जाएगा? So 2 is coming down, so this will be minus 3 by 2. So 10. Velocity of 1 minus 3. Velocity of 1 कितना हो जाएगा? Simply equal to 13 meter per second. So Zephyr 13 होगा बेटा. So 1 will go up with a velocity of 13 meter per second. Proper sign के साथ रखना है. So I am taking here upward direction as positive. So upward direction को अगर मैंने plus लिया है, तो downward direction क्या हो जाएगा? Minus. That is what you have to place. Am I clear? Yes, sir. एक आधा और कर लेते हैं. So let's say we have a pulley here like this. इसके साथ ऐसा arrangement किया है. And this we have connected with ground.
दूसरा ब्लॉक लगा दिया, ब्लॉक 1 पुली ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1। Excellent, Karthik. Karthik, can you explain me what is the logic you have used here? Sir, it is attached to the ground, so velocity will be 0. Correct. Super. Good, Tejas, Dhara, both of. कैसे करोगे? Velocity of pulley is equal to velocity of 1 plus velocity of 2 by 2. So I am taking the upward direction as plus, downward will be what? Minus. अभी हाँ, good आदित्य. So ये ऊपर जा रहा है, so that will be plus of course 5. Now 1 इसका velocity तो मुझे निकालना है, but velocity of 2 will be 0 because ये ground के साथ connected है. So velocity of 1 will be equal to 10 meter per second. Am I clear with this, everyone? Good, Kiara. Yes. चलो ठीक है, एक और लास्ट करेंगे, then we'll close for today. Let me make a problem like this. So, यहाँ से ऐसे पुली है, and then what we are having, से बना के पुली, and इसको मैंने ग्राउंड से अटैच कर दिया. We have another pulleys here. एक मिनट, छोटा बना इसको मैं कब बताऊं. इसके साथ एक और पुली ऐसे अटैच किया हुआ है, and along with this we have 2 blocks. So here we have 1 block, here we have 1 block, यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा ब्लॉक है. समझ गया पॉइंट है? नाउ ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से. नाउ लेट्स से दिस इज माय ब्लॉक ए, ब्लॉक सी, ये जा रहा है नीचे 4 मीटर पर सेकंड से, एंड ब्लॉक बी मान लीजिए ऊपर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड. सो ब्लॉक बी इज गोइंग अप विद 6 मीटर पर सेकंड. आपसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए. ऑफ ब्लॉक ए करो. डाटा शायद मैंने सही दिया, देखिए लेट्स सी क्या आता है. करेक्ट. इसको आप पुली 1 पकड़ लो, दिस इज पुली 2 एंड पुली 3. ओके, देखता हुआ आंसर, जस्ट गिव मी अ सेकंड.
सो पुली 1, पुली 2 एंड पुली 3. पहले हम लोग पुली 3 पे बात करते हैं, इसका निकालना आसान है, दोनों दिया हुआ है. So what we can say, velocity of pulley 3 is equal to our velocity of B plus velocity of C by 2. So velocity of pulley 3 कितना हो जाएगा? Velocity of B ऊपर की तरफ है 6, 4 नीचे की तरफ है -4 by 2. 30 आ रहा है. So velocity of pulley 3 कितना हो जाएगा? 2 by 2 which is 1. So velocity of pulley 3 कितना हो जाएगा? Will it be equal to 1 meter per second? और पॉजिटिव आया, इसका मतलब pulley 3 ऊपर जा रहा है 1 meter per second. जा रहा है ना? So pulley 3 is going up with 1 meter per second. ये पहला पार्ट हमने कैलकुलेट किया. Okay. Now we'll work on this. Pulley 2, pulley 1 and pulley 3 पे देखते हैं. So क्या आएगा? Can we say velocity of pulley 2 is equal to velocity of pulley 1 plus velocity of pulley 3 by 2? Can we say so? Yes. Okay. Which implies velocity of pulley 2 कितना दिया? 10. That to be positive क्योंकि ऊपर जा रहा है. Pulley 1 का velocity मुझे निकालना है, और pulley 2 भी 3 भी ऊपर जा रहा है 1 meter per second से by 2. So this is what 20 is equal to velocity of pulley 1 plus 1. So velocity of pulley 1 कितना हो जाएगा? Is it equal to 19 meter per second, and that is also I'm getting positive. मतलब pulley 1 किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना pulley 1, 19 meter per second, Yes. है ना. pulley 1 is going up with what velocity of 19 meter per second. अब क्या करें? मुझे B का इसका velocity चाहिए. How to get this velocity? A का. Can we say that velocity of pulley 1 is equal to velocity of A plus 0 by 2, because इसको तो आपने ground से attach किया हुआ है, so we'll have no movement here. तो ये 0 हो जाएगा. Velocity of pulley 1 कितना मुझे मिला? 19 is equal to velocity of A by 2, cross multiply it. So velocity of A कितना हो जाएगा? 38 meter per second. So this is the final answer. किसका आया था सही? Excellent आदित्य. Super. Aditya has got it right. So this means कि block A जो होगा ये ऊपर जाएगा 38 meter per second. Am I clear? Yes, sir. चल ठीक है. We'll close for today. अगले लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे. समझ गया ना आज का कॉन्सेप्ट सबको? कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का बेसिक डेफिनेशन एंड सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट. Yes, sir. Okay. Yes. Bye.